بیٹھے کی تلاوت ہونی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کی. آج سے 1 سال پہلے بھی ہم الیکشن جیتے تھے, سال بعد بھی الیکشن جیتے. یہ اللہ کی خیر ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. میرے بھائیوں میں نے عملی زندگی میں سیاسی طور پر کافی طور پر میں نے ایک الیکشن ہوا, MP کا الیکشن ہوا, خود بھی جامعہ کونسل بھی رہا ہوں 4 سال سے پہلے بھی. اللہ کے فضل و کرم سے کسی کام میں نیک نیتی سے کام کیا, اور کبھی میں دعوی نہیں کھڑا ہو کہتا ہوں کہ کسی آدمی سے میں نے 1 روپیہ نہ کر لیا نہ کسی کا کھایا. انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور شاہد عزیز صاحب ناظم کی نگرانی میں میرے ہوتے ہوئے یہاں گزرے گا. آپ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ محبت, شفقت, محنت, دیانت کے ساتھ کام کرے گا, اور پتہ لگے گا کہ آدمی آئے ہیں اور ان کام کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے آپ اچھا نام چھوڑ کر جائیں اور اپنی محنت سے لگن سے کام کریں. میں آپ سب کا آپ کے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی اور انہوں نے اس مقام پر چاہا. میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک بات کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظم نوجوان آدمی شاہد عزیز اور ان کے بھائی زیاد عزیز کے اندر اسپیشل طور پر میں شہباز دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, اتنا خرچ کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج ہم اس مقام پر پہنچے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین, میرے بھائیوں اور دوستوں, جناب شاہد عزیز کیانی صاحب ناظم یونین کوثر ویڑی, منیر کیانی صاحب نائب ناظم یونین کوثر ویڑی, اور معزز سامعین السلام علیکم. میرے بھائیوں, الیکشن کا ایک سلسلہ تھا جو اس فرونیت کے دور میں پورے ضلع جہلم پہ آپ نظر ڈالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈی یونین کونسل کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس فرونیت کے دور میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی سیٹ جیت کر اپنے گھر گئے. حیثیت سابق ناظم یونین کونسل لیڈی جو میں کرنا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جس وقت یہ پروسیس چل رہا تھا, الیکشن ہو گئے تھے, اس کے بعد جب گوئیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ سابقہ ناظم اور یونین کونسل کے جو موجودہ ناظم ہیں جو الیکشن لڑے ہیں, شاید انہوں نے کسی کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے دوسرے گروپ سے کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا شروع کر دیا. میں واشگاف الفاظ میں اور پرزور الفاظ
अल्फाज में ये बात करता हूँ कि सन 79 से मैं सियासी ग्राउंड में हूँ। मेरे चंद दोस्त या मेरी टीम जो 79 से लेके आज तक मेरे साथ हैं, हमने हमेशा दयानतदारी और खुददारी की सियासत की है। हमने बेहयाई और बेगैरती की सियासत जिंदगी में न की है, न ही करेंगे। और तो इन लोगों का जो फैसला था, शाहिद अजीज कियानी और मुनीर कियानी साहब का फैसला, वो मैं आज आप बड़े मजमे के सामने कहता हूँ कि वो फैसला मेरा नहीं था, मेरी टीम का था। मैंने कभी भी जिंदगी में फैसले खुद नहीं किए, मैं दोस्तों से मिलकर फैसले करता हूँ। और इस वक्त इस दफा मैंने फैसला किया था कि मेरे साथ चलने वाले लोग जो भी फैसला करेंगे मैं उसकी पाबंदी करूँ। और मैं आज ये समझता हूँ कि मैं और मेरी टीम या बाकी दोस्त जो शायद अजीज कियानी साहब के साथ और मुनीर कियानी साहब के साथ चले हैं, उन्होंने जो फैसला किया था, रब्बुल जलाल ने उसको पाया तकबीर तक पहुंचाया और हमें सुरखरू किया कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे ग्रुप की तरफ से या हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई बादयानती या कोई बेहयाई हमारे जहन में भी आई। मैं बाशगाह अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि राजा मोहम्मद अफजल खान की क़यादत में हमने ये फैसला किया था। हम उस वक्त भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों को छोड़ने वाले लोग वो हयादार लोग नहीं होते, वो बेगैरत लोग होते। और मेरी टीम का हमेशा ये खदशा रहा है, सन 79 से लेकर आज तक हमने कभी भी इक़्तिदार की तरफ नहीं देखा कि इक़्तिदार में कौन है, हुकूमती ऐवानों में कौन बैठा हुआ है, ज़ेरे सितम कौन है। हमने हमेशा हालात का डट कर मुकाबला किया और हमेशा ही अपोजिशन की सियासत को दूसरी सियासत पर तरजीह दी। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एक बात जो मेरे दिल में खलिश थी, मुनीर कियानी साहब ने, जब मेरा और कियानी साहब का इलेक्शन हुआ, कियानी साहब इलेक्शन हार के मैं जीत गया, उसके बाद मैंने तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। जब मैंने फैसला किया तो मुनीर कियानी साहब ने बगैर किसी हीलो उज्जत के, जिसमें औरंगजेब साहब भी शामिल थे, इन्होंने फैसला किया क्योंकि ये आदमी यूनियन कौंसिल लैडी से इसका तल्लक है, इसलिए हम अपनी जाती नाराजगियों को छोड़कर हम इसकी इमदाद करेंगे। और कियानी साहब ने भरपूर तरीके से तहसील नाज़िम के इलेक्शन में मेरी कैंपेन चला। तो मेरी और मेरी टीम की ये ख्वाहिश थी कि कभी अल्लाह ताला ये मौका लाए कि हम मुनीर कियानी साहब की ये बाजी उनको लौटा सकें। तो मेरा उस वक्त भी यही ख्याल था कि अगर अल्लाह ताला ने हमें तहसील में फतह दी तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं तहसील में बैठा हुआ हूँ, यूनियन नाज़िम मुनीर कियानी साहब। लेकिन अल्लाह ने, उसकी अपनी मसलतें होती हैं, वो रब्बुल जलाल है, वो बेहतर जानता है उसने क्या करना है। अल्लाह ताला ने हमें शिकस्त से उस वक्त दो चार किया, इसमें उसकी कोई बेहतरी थी, मुझे उस पर अफसोस नहीं है। शायद मैं वो काम उन हालात में न कर सकता जिसकी लोग कोई तो करते थे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया। और मैं ये समझता हूँ, शायद अजीज कियानी भी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, उनके और मेरे घर का बड़ा पुराना एक तल्लक है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुनीर कियानी साहब की सीट पे बैठे। मैं और मेरी जो टीम थी वो इस बात में सुरखरू है कि अगर मुनीर कियानी साहब ने वफा की थी तो हमें भी बेवफाई नहीं की, हमने भी अपनी वफा का रंग उन पे चढ़ा के दिखा दिया। इसके बाद मैं यूनियन कौंसिल के हवाले से एक बात करूंगा कि जब तक मैं नाज़िम यूनियन कौंसिल रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे दोस्तों को, भाइयों को, मेरे साथ चलने वालों को वो ये नहीं कहेगा कि वो आपका नाज़िम या आपका चेयरमैन बददियानत था। और मैं दुआ करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है और मैं ये करता हूँ कि मेरे ये दोनों भाई भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को नाउमीद नहीं करें। इसके बाद एक बात इस मसले की वसातत से मैं जरूर करूंगा कि हमारा मुकाबला मकामी नाज़िम या यूनियन नाज़िम के साथ नहीं था। हम एक नजरिए के मालिक हैं, नजरिए की जंग थी। हम जो नजरियाती लोग इकट्ठे थे, वो लोग अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ रहे थे। आपका मुकाबला जिला जेलम की उन मुक़द्दर शख्सियात से था जो इस वक्त जिला जेलम में स्वायर राना और लैडी के बगैर मेरे ख्याल में पूरे जिले को फतह कर चुके हैं। लेकिन इस यूनियन कौंसिल के गयूर अवाम, इस यूनियन कौंसिल के वफादार लोगों की वजह से मैं इस काम में सुरखरू हुआ हूँ कि आज तक इस यूनियन कौंसिल को किसी भी जाबर या किसी भी हुक्मरान ने फतह नहीं किया। इस यूनियन कौंसिल की आवाम ने इस यूनियन कौंसिल को फतह किया। आजकल जो हालात जा रहे हैं, टाइम बहुत कम है, कियानी साहब ने कहा था कि मुख्तार करें, लेकिन मैं आप लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि एक शायर था सागर, वो लाहौर में रहता था, उसके पास एक कंबल होता था, पाँव में चप्पल भी नहीं होती, बड़ा अवामी शायर था वो।
बोरिया नशीन आदमी था। तो एक दफा अयूब खान के दौर में, मार्शल दौर में, अयूब खान लाहौर तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि सागर को तलाश करके लाओ, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक एसपी को सत्तर से बुलवाया गया जहाज पे कि सागर को तलाश करो कि लाहौर में वो किधर है। बड़ी तलाशे बसियार के बाद सागर साहब को कहा गया कि आपको अयूब साहब और अमीर मोहम्मद खान, जो कि मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, वो बुला रहे हैं, वो आपको कुछ नवाजना चाहते हैं। तो सागर साहब ने उसका जवाब, जो कि वो बोरिया नशीन था, उन्होंने उसका जवाब एक शेर की शक्ल में उस आदमी को दे के जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तमतनत से बोरिए पे बैठने वाला फकीर, तमतनत से बोरिए पे बैठने वाला फकीर, हाथ फैलाता नहीं मोरे सुलेमान देखता। वो थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब किसी के हाथ पे लगा दी जाती थी, वो जहाँ जाता था उसको इज्जत दी जाती थी, उसको मालूम बता दिया जाता। तो सागर ने कहा कि मोरे सुलेमान देखकर हाथ फैलाने वाला आदमी नहीं हूँ। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम लोग चाहे गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, हम कभी भी मोरे सुलेमान देखकर मेरी टीम कम अज कम हाथ फैलाने वाली नहीं हो। इक़्तिदार देखकर इक़्तिदार की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा मजलूम का साथ है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, आजकल मुल्क के जो हालात है, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, हमारी एक नजरिए की जंग है, हमारी यूनियन कौंसिल की लड़ाई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जिस हालात में हमारे मुल्क को आज मसाइल दरपेश है, वो जिस जगह पे चल रहा है, जहाँ जो कुछ इस्लाम के साथ हो रहा है, हमें वो लड़ाई लड़नी है। यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि तुम फलां बरादरी के हो, तुम फलां के हो, तुम फलां को वोट दे दो। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, कभी भी बरादरीज़म पे वोट ना दें, हमेशा नजरिए को देखकर वोट दें कि इस्लाम पसंद कुव्वतें कौन सी है और इस्लाम के मुखालिफ कुव्वतें कौन सी। जिस वक्त इस मुल्क के अवाम ने ये सोचा कि हमने किन लोगों को वोट देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की तकदीर उस वक्त बदलेगी। आप लोगों ने बदलनी है, ना कोई जनरल बदल सकता है, ना कोई प्रेसिडेंट बदल सकता है, ना अमेरिका वाले बदल सकते हैं। आज तो हमारी ये हालत है कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, एटमी तवानाई है हमारे पास, एटम बम हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब अमेरिका से में एक टेलीफोन आता है, हम कहते हैं जी हमारी जिंदगी मौत जो है वो अमेरिका के हाथ में। हमने इसलिए ये फैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी इंसान को पैदा करना और मारना सिवाय अल्लाह के दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं। इसलिए जो लोग अल्लाह का तकवा करते हैं, जिन लोगों का इत्मीनान अल्लाह पे है, हैसियत मुसलमान, उनको दुनिया की कोई ताकत का पैदा कर सकती है ना मार सकती। इसके लिए मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो लोग आप हमारी मीडिया के थ्रू या दूसरे थ्रू ये तबीयत दे रहे हैं कि हम मर जाते अगर अमेरिका के हक में फैसला न करते, मैं ये समझता हूँ कि उनके अल्लाह पे उनका इत्मीनान नहीं। इसलिए दोस्तों, आखिर में गुजारिश ये करूंगा, आप जब भी अपना वोट इस्तेमाल करें, चाहे किसी के हक में भी करें, थोड़ी सी ऊपर नजर दौड़ा के देखें कि कोई इस्लामी को ये हमारा वोट जो है इसकी ताकत किस तरफ जा रही है। जब हम बरादरीज़म पे वोट देंगे, कुंभा परवरी पे वोट देंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये मुल्क कभी भी सुधर नहीं। इसलिए आखिर में वक्त काफी हो गया। आपके नाज़िम साहब, आप लोग नाज़िम साहब को भी देखना पसंद करेंगे, जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जाते जाते एक दफा ये जरूर कहूंगा, दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदे को उबारा। दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने अपने दरिंदे को उबारा। अल्लाह को है पामर्द ये मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उस रात का शुक्रगुजार हूँ जिसके करम, जिसके फजल से आज मैं और आप यहाँ खड़े हैं। उसके बाद एक बात का बखूबी मुझे यकीन है कि अगर मालिक की रजा और उसकी मर्जी जिस काम में हो, दुनिया की कोई ताकत भी उसे चैन नहीं कर सकती। तकरीर की और इतनी लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा, ना मैं झूठे दावे करूँगा। ये यूनियन कौंसिल में अभी 2 साल या 3-4 साल जो टाइम है, इसमें इंशाल्लाह मैं काम करूँगा और आपको बखूबी यकीन हो जाएगा कि इंशाल्लाह बेहतर आपको नजर आएगा। मैं इस सियासत में आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपने ज़ात के लिए कोई फ़ायदा लूँ या अपने कोई नाम पैदा करने के लिए लूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मौला को राज़ी कर सकूँ। और जिस काम में मैं समझता हूँ कि अपना मौला की रजा की खातिर करता हो, वो काम कभी भी रुक नहीं सकता। अल्लाह ताला उसको छोड़ देगा। और जो हमारा यूनियन
कौंसिल में जो भी फंड है, जो वसाइल हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरे हल्के की आवाम के लिए भरपूर तरीके से और बड़ी ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, किसी को गिला बिल्कुल नहीं होगा और अच्छे तरीके से किसी को। जो मेरे बुजुर्ग भाई, दोस्त और माएँ मेरी, जो बहनें जिन्होंने रात भर इस अरसे में 10-11 महीने में मसलों पर बैठे कर मेरे लिए दुआएं मांगी हैं, नफलें पढ़ी हैं, इंशाल्लाह उनकी दुआओं को मैं रायगां नहीं जाने दूंगा। फिर मैं अपने हल्के के हर बंदे की उसकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इस इतने लंबे अरसे में, 1 साल में मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे लिए इतने अच्छी तरीके से पेश आए हैं, और मैंने जो जितनी मेहनत की है, जितना भी चला हूँ, यकीन करें कि मैं आपके इखलाक को, आपकी मोहब्बत को देख कर मैं अपनी उस जितनी मुसीबत मैंने काटी है उसको भूल गया। मैं वो आपका नजर आता है मुझे जो आपने किया मेरे साथ इतने अच्छे। आखिर में फिर मनीर कैनी साहब, राज शोकर साहब का, करण मुज़ेर साहब का, तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे इस जगह पर आज खड़ा किया। जनाब नाज़म ताहिर शौकत साहब और मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे तकरीबन 5.5 साल हुए हैं कि मैं फौज से रिटायर हो गया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैं अपने गांव में आके आबाद हुआ। ये खास मुझ पर अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। जब मैं गांव में आया तो मैंने आगे पीछे माहौल देखा, तो वो माहौल जो है वो आप सबको पता है, तो मैंने नई बात करने वाला नहीं हूँ। झूठ, फराड, बेईमानी, एक लड़ाई हुई, एक के साथ लगा, थाने चला गया, एक को ढका दिया, दूसरे को पैसे खा गए। ये जो सिलसिला है ये मेरी आंखों ने देखा, दिमाग ने पढ़ा यहाँ का। पहले दिन से मुझे अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने जहाज का ऐलान किया। जहाज यही था, जात के लिए नहीं। मैं किसी सीट के लिए, मैंने कोई आदमी कहे कि मैंने कहा जी मैं फलाना इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मुझे भी 5.5 साल हो गए यहाँ आए हुए, मुझे भी खुदा ने इज्जत दी है, खुदा ने मुझे रैंक दिया, दुनिया मुझे जानती है। आप लोग मुझे बहुत सारे जो हैं मुझे पहचानते नहीं है। मैं आपका अजीज हूँ लेकिन आप नहीं पहचानते, इसलिए आपने मुझे देखा नहीं है। जिन फौजियों ने मुझे देखा है आप उनसे पूछें मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है। अल्लाह की मुझ पर रहमतें नहीं। मैंने ऐलान किया कि मैं हर झूठे से टक्कर लूंगा और गलत चीज को गलत कहूंगा, फ्रॉड को फ्रॉड कहूंगा। ये मैंने ऐलान किया और आज मैं खुश हूं कि अल्लाह ताला ने इन बच्चों की मेहनत से आज अल्लाह ताला ने हमें उस मुकाम पर खड़ा किया है जहां मैं यकीन के साथ, वसूख के साथ, अपने मुकम्मल यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि ये बच्चे आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। ये नाम आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो मैं इंशाल्लाह पहला शख्स हूंगा कि खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मेरा वजदान कहता है कि ये नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और ये बहुत ईमानदारी से आपके काम करेंगे। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है आपको इनको तकलीफ दें, इनको मैं यही तलकीन करूंगा कि पार्टी मत करो। और ये गरीब, ये अमीर और दूसरा ये जो है ना बरादरी पत्ती, ये इज़्म इसको खत्म करो। और जब आपको गलत आदमी है उसको यार तुम गलत हो, अगर तुम गलत हो, तुम्हारा कसूर है तो यार हम भी उसके गोड़े कीड़े पड़ते हैं और तुम्हें माफी दिलाते हैं, तो जान बचाते हैं। मैं सफाई, सुलह सफाई से काम चलाओ, यही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आखिर में मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इन अजीजों को कामयाब कराया। आपकी मशक्कत थी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इतना मौका दे कि आप इस यूनियन को फलते फूलते और
शुक्रिया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ